Hello students, welcome to our IPS e-learning program. In 9th standard, we are having our second chapter polynomials and it's our 7th lecture on it. Last lecture we have discussed about the remainder theorem and I have told you that for understanding the remainder theorem properly, you need to first understand the division algorithm. And we have seen that what a division algorithm is, right? Depending on that, we have calculated our example number 6. And I have taught you in that how can you divide a polynomial p of x by a polynomial g of x. Means we have learned the division of polynomials. Let's get some more practice on it, right? थोड़े और सम्स आज हम करेंगे वैसे ही डिवीजन के, so that आपके दिमाग में डिवीजन कैसे करना है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? Today we are going to do example number 7 and example number 8. The question I have already written on the board. You can see it from this also and from the textbook too. Now our example 7 is divide the polynomials 3x raised to 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. Now first of all, let's calculate our example number 7 here. Solution, right? We have been given with two of the polynomials in which one is our p of x and second is a g of x. So what's our p of x? Let's see. P of x given to us is 3x raised to 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. Now here what you have to keep in mind is whenever a polynomial is given to you, whenever you further go for the division, जब कभी भी आपको डिवीजन करने का है, whenever a polynomial is given to you, सबसे पहले the first thing you should make the polynomial to be in a standard form. The polynomial must be in a standard form. मैंने आपको जो पहले कंसेप्ट सिखाए हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जीरो पॉलिनोमियल कहाँ पे यूज़ होगा, राइट? जीरो पॉलिनोमियल के बारे में हम जब बात कर रहे थे तब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा दैट वेयर इज दिस जीरो पॉलिनोमियल यूजफुल, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट अ जीरो पॉलिनोमियल इज यूज्ड हियर. हाउ इज दैट यूजफुल हियर? विल कन्वर्ट दिस p of x as a standard form. Standard form in the way that all the terms must have the decreasing power of a variable. That means here it's given the power 4, x is to 4, 3x is to 4. Afterwards we are with a term 4x cube. Now the term with x square is not given to us. So what we'll do here, we'll take the term with x square but with 0 coefficient, and here the term of 0 is used, 0x square. Clear? Now the term with x is to 4, x is to 3, x is to 2. Now it's x is to 1. Yes, the term with x is to 1 is already given in our question, that is 3x, and x is to 0 is a constant term which is minus 1. So now this is our p of x is ready. Now let's see our g of x. G of x given to us is x minus 1. In this you can see the power of x is 1 and then it becomes x is to 0 here, because this is a constant term, right? For constant term it has a variable x is to 0 with it. So g of x is okay. So now we will take this as p of x and this as g of x and we will divide p of x by g of x. अब आपको ये क्वेश्चन हुआ होगा कि कौन सा पोलिनोमियल p of x लेना है और कौन सा g of x लेना है, ये कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे क्लियरली आपको स्टेट किया गया है क्वेश्चन में कि डिवाइड द पोलिनोमियल दिस बाय दिस. तो इसको इससे डिवाइड करना है ऐसा बोला है, तो ये वाला जो पोलिनोमियल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा p of x और हम p of x को g of x से डिवाइड करते हैं, इसलिए दिस पोलिनोमियल विल बिकम आर g of x. नाउ लेट्स गो फॉर द डिवीजन. They have asked us to divide these polynomials और अंदर आएगा 3x raised to 4 minus 4x cube minus 0x square minus 3x minus 1. Clear? This is how we'll proceed for the division. Now
जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एग्जाम्पल 6 में, what will concentrate here, let me write it little this side, okay, what will concentrate here, the first term of both g of x and p of x. Now what I'll multiply x with so that I can get here 3x raised to 4. ये जो चीज़ें हम यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ ये साइड में यहाँ पे लिखती जाऊँगी जिससे आपको अंदाजा हो हम क्या कर रहे हैं। x के साथ ऐसे कौन से पॉलिनोमियल को, ऐसे कौन से टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3x raised to 4 मिले। That means I have to multiply x with something here so that I can get here 3x raised to 4. So getting 3x raised to 4, I'll multiply x with 3x raised to 3. तो 3 का जो कांस्टेंट है वो 3 हो जाएगा और x raised to 3 और एक और x यहाँ पे तो हो जाएगा x raised to 4. So we'll multiply x with 3x cube so that we can get here 3x raised to 4. Clear? Now the terms that are left here with g of x we multiply it directly with the 3x raised to 3, that means 3x cube. माइनस 1 को हम 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 3x क्यूब. Understood? Now what we'll do, we'll change the signs. ये 3x raised to 4 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. Now evaluating this, first term will get cancelled out and the second term minus 4x cube plus 3x cube will become minus x cube. और जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो हम यहाँ पे लेंगे 0x स्क्वायर. ओके, देखो आप ये सारे के सारे टर्म भी यहाँ पे नीचे एक साथ लिख सकते हो और जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं फॉर द रियल नंबर्स इन द सेम वे यू कैन टेक वन बाय वन टर्म ऑल्सो. ओके, नाउ व्हाट विल आई मल्टीप्लाई x विथ सो दैट आई कैन गेट हियर x क्यूब. x को हम ऐसे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब मिलेगा. वी नीड टू मल्टीप्लाई समथिंग विथ x, so if we multiply x with something called minus x square, then only we will get minus x cube. You agree? Right? So here we multiply x with minus x square so that we can get here minus x cube. Now rest of it we will multiply it as it is. Minus 1 into minus x square will become plus x square. Changing the signs, here it will become plus, this will become minus, this will cancel each other and minus 0x square plus, sorry, minus 0x square minus x square. So it will result through a term minus x square. Here we will take this down here, now we will take this term here, minus 3x. सिंपल डिवीजन है ना, बिल्कुल सिंपल है. बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा डिवीजन के अंदर, पूरे का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर एक भी आपकी माइनस प्लस की या फिर टर्म की मिस्टेक आ गई ना तो पूरा का पूरा डिवीजन आपका गलत हो जाएगा. सो जब कभी भी यू विल गो फॉर द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स यू हैव टू बी एक्यूरेट इन इट. नाउ वी हैव हियर माइनस एक्स स्क्वायर एज आवर फर्स्ट टर्म and here it's already given x. So what will I multiply x with so that I can get there minus x square. सिमिलर वे इसी तरह से आप कह सकते हो कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा. ऑब्वियसली विथ माइनस एक्स, x को अगर आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा. राइट? सो मल्टीप्लाई x विथ माइनस एक्स यू विल गेट हियर माइनस एक्स स्क्वायर. Now multiplying the remaining term as it is, minus 1 into minus x will become plus x. Changing the signs, this will become plus, this will become minus, this term will get cancelled out. कैंसल आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है. आप सबको पता होगा अगर माइनस 5 है और उसके साथ प्लस 5 किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0. एज एन एग्जाम्पल हम ये समझ रहे हैं. तो वैसे ही अगर कोई भी आपको टर्म दिया गया है, सपोज से माइनस एक्स स्क्वायर है और उसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो वो भी हमेशा क्या हो जाता है? 0. इसलिए ये दो टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, वैसा हम कह सकते हैं. राइट? दिस इज
हाउ आर डिवीजन प्रोसीड, ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि कैसे ये, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कैंसिल, दिस टर्म्स कैंसिल ईच अदर, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस, अगर एक वही नंबर है, एक पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. नाउ गेटिंग हियर अगेन टू आवर डिवीजन, -3x minus x, it will result to -4x, and taking this -1 here, you have to put this in mind. कभी जो भी आप टर्म ऊपर से नीचे ले जा रहे हो यहाँ पे डिवीजन के लिए, उसको हमेशा उसकी साइन के साथ ले जाना है. You always have to keep its sign with it, okay? उसकी जो साइन है ना, वो उसके हाथ पैर है, हाथ पैर टूटने नहीं चाहिए, उसकी बॉडी पूरी की पूरी ले जाओ नीचे, जहाँ पे भी ले जा रहे हो. तो -4x and here will be -1. So now what will you multiply x with so that you can get here -4x? हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे -4x मिलेगा. One and only -4. If you multiply x with -4, you will get -4x. Simple. यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 and here will become -4x. And multiplying -1 with -4x will result to +4. Now again changing the signs, this will get cancelled out and -1 -4 will result to -5. This is how our division proceeds and get finished here. Understood? Very simple. बस आपको पूरा का पूरा ध्यान डिवीजन में होना चाहिए. कहीं भी थोड़ी भी टाइम के लिए अगर आपका ध्यान भटका, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ कि आपका डिवीजन में कहीं भी कुछ गलत हो सकता है. ओके, नाउ राइट इट डाउन इन योर बुक, पॉज द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, ये जो चीज़ है यहाँ पे, जो एक्सप्लेनेशन के मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाला पार्ट अगर आपको पता है ऑलरेडी, यू नो इट परफेक्टली, तो ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स इन योर बुक. और ये वाला पार्ट जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको कैसे ये मिल रहा है. ये आपको डिवीजन में बताना ज़रूरी नहीं है कि हमने कैसे ढूंढा है, ये चीज़ दिमाग में करने की होती है कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा. ओके, सो ये चीज़ जो है ये सारी की सारी आपको कोई रफ पेज में या फिर आप अपने माइंड में कर सकते हो ये वाली चीज़ें. और ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एक फैक्ट है, कोई भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को जब हम एडिशन करते हैं तो वो 0 आता है. तो ये चीज़ अगर नहीं लिखोगे तो, मतलब नहीं लिखोगे तो चलेगा, और वो वाली चीज़ है वो सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक में साइड में लिख सकते हो. बट जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि करो डिवीजन, तब आपको सिर्फ ये डिवीजन करके दिखाना है, वो वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट और इस लाइन के बाद ये जो लिखा हुआ ये पर्टिकुलर थिंग आपको नहीं दिखानी है आपकी आंसर में. ओके, सिर्फ जो सॉल्यूशन हमने किया है सिर्फ वो डिवीजन आपको दिखाना है, डिवीजन करके. ओके, I hope you all are now done with question number or example 7 solution. Now let's get to our next example, that is example number 8. मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, डिवीजन बिल्कुल हार्ड नहीं है, दे आर वेरी सिंपल. सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और मैं आपको सारी छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ कि हम कैसे कौन से टर्म्स कहाँ पे किस तरह लिख रहे हैं. राइट? नाइन्थ स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाइन्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स का बेस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिर आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Okay, now let's get to our example number 8. It is given that find the remainder obtained on dividing this polynomial by this polynomial. तो इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब ये वाला हमारा हो गया p of x and the remaining polynomial that is x plus 1, ये हमारा हो गया g of x. Clear? Now let's get to the solution of example number 8. Now here we have given p of x. P of x is x cube plus
1. So we'll write x cube plus 1. But you can see here, मैंने जो अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में, मतलब डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल होना चाहिए प्रॉपर डिवीजन के लिए, ताकि आपकी डिवीजन में कोई मिस्टेक ना हो. ओके, तो हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं. सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हमें दिया गया है. ये हमारा हो गया p ऑफ x. नाउ आवर g ऑफ x गिवन टू अस इज x plus 1 एंड g of x इज ओके, क्योंकि g of x में जो x दिया गया है उसकी पावर 1 है, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल होगा x raised to 0, उसकी पावर 0 है, तो 1 and 0. g of x इज ओके. आपको g of x चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपको g of x भी इस p of x के टाइप का दिया जाता है कि जिसमें कोई पावर वाली टर्म मिसिंग है, तो वहाँ पे आपको वो पावर वाली टर्म को 0 कोएफिशिएंट के साथ लेना होगा. ओके, हमारे दोनों एग्जाम्पल में g of x के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एग्जाम्पल में नहीं आएंगे. g of x के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं. So now we'll consider this our p of x and this as our g of x. Let's get to the division. X cube plus 0x square plus 0x plus 1 and we'll divide this with x plus 1. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है. हमेशा जो हमारा क्वेश्चन दिया जाता है उसको ठीक से, मैं तो कहूँगी 2 बार पढ़ो, ठीक से पढ़ो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के लीड अस टू अ रॉन्ग आंसर. यहाँ पे हमें कहा है कि यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. अंडरस्टूड? व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर इज जस्ट द रिमाइंडर. कैसे? इन दोनों को डिवाइड करके. तो हमारा जो रिमाइंडर है वो इस क्वेश्चन का आंसर है. तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x. नाउ अगर इस डिवीजन में थोड़ी सी भी कहीं भी माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई तो आपका रिमाइंडर गलत आएगा, और अगर आपका रिमाइंडर गलत आया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए डिवीजन में पूरा कंसंट्रेशन रखना ज़रूरी है. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. उसी प्रॉपर मेथड से मैं आपको यहाँ पे ये भी सम सिखाऊंगी. लिसन, 2 ऑफ द सम्स मैंने बहुत डीपली आपको समझाया है कैसे हमारा डिवीजन हो रहा है, एंड दिस सम ऑल्सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड every minute thing and every single thing very clearly. बट इसके बाद जब हम डिवीजन करेंगे तब मैं आपको ये वाला जो पार्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हम किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वाला पार्ट शायद उसमें मैं आपको ना बताऊँ, क्योंकि ये 3 सम जो हमने किए हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा. Okay, now let's get started to our sum, that is our division. What will multiply x with? This is our first term x and here it is x cube. So we need to multiply x with some term or some number or some expression so that we can get here x cube. Now x को ऐसी क्या चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपको x क्यूब मिले? Obviously अगर आप इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको वहाँ पे x क्यूब मिलेगा. So we'll multiply x with x square and we'll get here x cube. Understood? Now ये जो +1 है उसको हम वैसे ही यहाँ पे जो भी हमारा इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे टर्म आता है उसी से हम इस +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे. Now multiplying 1 with x square will result x plus x square. Changing the signs, we'll change the signs here. This will get cancelled out. And here we are left with minus x square. Now changing this 0x, taking this 0x here with its हाथ पैर. ओके, उसके हाथ पैर के साथ हम उसे नीचे लेंगे. अगर प्लस साइन दी गई है तो उसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे, अगर माइनस साइन दी गई है तो हम उसे माइनस साइन के साथ लेंगे, पर पूरी की पूरी बॉडी को हम नीचे लेंगे. ओके, अब x को आप कौन से वैसे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सो दैट यू कैन गेट हियर माइनस एक्स स्क्वायर. x को आपको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट यू कैन गेट हियर माइनस एक्स स्क्वायर. द ओनली एक्सप्रेशन इज माइनस एक्स. इफ यू मल्टीप्लाई x with minus x you will get that minus x square. So multiplying x with minus x you will get here minus x square, and 1 with minus x will result to minus x. Now changing the signs, this will get cancelled out and here we are left with x,
and this one will come here now +1. now अब देखो, अब तो आप कह ही सकते हो x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x + 1 मिलेगा, ऑब्वियसली विथ +1, राइट. आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा विथ 1. 10 1s are 10. तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स में भी होता है. अगर आपको सेम पॉलिनोमियल चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम पॉलिनोमियल आ रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, +1 से. यहाँ पे आपको मिलेगा x + 1. चेंजिंग द साइंस, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट and you are here left with 0. therefore here remainder r of x equals 0. अंडरस्टूड. आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा था यहाँ पे एंड वी हैव फाउंड द रिमाइंडर. was it is 0. Simple. Write it down in your classwork, pause the video or take the screenshot of it. This much for today. I hope now you are clear with the division of the polynomials. क्योंकि आगे जो भी सम्स आने वाले हैं, जो भी कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो भी थियरम सीखने वाले हैं, उसके अंदर एक आपको डिवीजन एल्गोरिथम अच्छी तरह से आना चाहिए और दूसरा ये डिविजन्स आपको परफेक्टली लर्न होने चाहिए. आपके टेक्स्ट बुक में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक और मेथड भी दी गई है, दैट यू कैन फाइंड इट इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ अब हमने 3 सम्स यहाँ पे किए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पे कुछ और सम्स की, ताकि आपकी पकड़ बनी रहे डिवीजन पे. ओके, सो फॉर योर होमवर्क write it down first, then I'll write the homework on the board. Okay, so your homework will be you have been given with exercise 2.3. It's question number 1. In that question number 1, you have to do first, third and fifth. सेकेंड और फोर्थ है, उसके जो Q of x, G of x आपको दिए गए हैं वो थोड़े से फ्रैक्शन और पाई के फॉर्म में है, तो शायद वो आपको थोड़ा सा टफ लगे. मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी तरह से अब डिवीजन समझ में आ गया है और कुछ बच्चे तो बहुत होशियार है, कर भी लेंगे, बट they are little trickier, so I'll make that sums, I'll make you understand those sums. हम यहाँ पे हमारे लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे. बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ है, they have been given with a simple g of x, और आपको क्या करना है, उसमें भी आपको एक p of x दिया गया है क्वेश्चन में और आपको नीचे अलग अलग g of x दिए गए हैं. उससे आपको p of x से g of x को डिवाइड करना है, g of x और p of x को, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. अब ये आपका हो गया होमवर्क. ओके, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, 1, 3 एंड 5. और यहाँ पे आपको परफेक्टली मतलब क्लियरली कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग गिवन g of x, राइट. सो यहाँ पे आपको डिवीजन करके ही डिवाइड करना है. अब दूसरी एक जो ट्रिक है रिमाइंडर फाइंड करने की डायरेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. मैं आपको ये एग्जाम्पल 8 के लिए ही वो ट्रिक दूसरी बार सिखाऊंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन आपको डिवीजन से ही इन तीनों क्वेश्चन को करना है होमवर्क में. ओके, दिस ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वर्क हार्ड एट होम. थैंक यू.